Okay. So that was the answer. 4 into x square upon 8 plus x minus 1 upon x whole raised to power 3 into x upon 4 plus 1 upon x square. So I will write, so first the 4 number, then this one in the order, in the proper order. So here I am writing the answer dy upon dx. So first of all I will write 4, then this term x upon 4 plus 1 upon x square. Then this one x square upon 8 plus x minus 1 upon x whole raised to power 3. This is the final answer. This is the final answer. Sayyid Muhammad Usman 63626. So this is the final answer. Dy upon dx is equal to 4 into x upon 4 plus 1 upon x square into x square upon 8 plus x minus 1 upon x whole raised to power 3. This is the final answer. Sometimes it is difficult to suppose you and then solve it. And if you do directly, that will be better and easy. Zishan Ahmed Khan 63350. So I'm doing another question. Question number 21. S is equal to 4 upon 3 pi sine 3t. S is equal to 4 upon 3 pi sine 3t plus 4 upon 5 pi cos 5t. Find ds upon dt. So I think it will be easy for us. We will do directly. So ds upon dt will be equal to 4 upon 3 pi is constant. It will remain as it is. Derivative of cos 3t sine 3t will be cos 3t into derivative of 3t with respect to t. So we are doing directly. This is also a chain rule, but directly. Plus 4 upon 5 pi is also constant. Derivative cos of 5t will be minus sine 5t into derivative of 5t.
into derivative of 5t. It will become 4 by 3 pi into cos 3t into derivative of 3t will be 3 plus minus 4 upon 5 pi into sine 5. Minus will be taken over there. So sine 5t into derivative of 5t will be 5. This 3 is cancelled by this 3. This 5 is cancelled by this 5. The answer is 4 upon 5, 4 upon pi cos 3t minus 4 upon pi sine 3t, sine 5t. If we take 4 upon pi common, into cos 3t minus sine 5t. 4 by 5 cos 3t minus sine 5t. This is the answer. Here also we use the chain rule. The derivative of this one into the derivative of this one. But we did not suppose u and v, etc. We did not suppose u and v, etc. So sometimes direct derivatives are easy instead of suppose u and v and etc. etc. That was question number 21. That was question number 21. Understood all of you? Six four three one five. Okay. We will do question number 23. Question number 23.
Question number 23. R is equal to cosec theta plus cot theta whole raised to power -1. Plus cot theta whole raised to power -1. So we will do directly. We do not suppose this is u. So dr upon d theta. First we take the -1 power over there into the same function. Raised to power -1 was there, but it shifted over there and we will subtract -1. And then we'll take derivative of what is inside. Derivative with respect to theta of what is inside. Cosec theta plus cot theta. Its derivative, not power. What is inside the power? It will become minus cosec theta plus cot theta raised to power -2 and derivative of this one. The derivative of cosec theta will be minus cosec theta cot theta. Then plus derivative of cot theta will be minus cosec square theta. The derivative of cot theta is minus cosec square theta. Take minus common. Minus common. So this minus and this minus will be plus. It will become cosec theta plus cot theta raised to power -2. If I take cosec common from here, minus cosec, so minus into minus will be plus, and cosec also common. So inside will be cot theta. सर आपने शुरू में sec लिखा है cosec लिखा है? कौन सा? ये कोसेक है भाई जी सर। कोसेक है, कोसेक थीटा है ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज आएगा पावर -2। इसमें से माइनस कोसेक कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक थीटा अंदर बचेगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ये भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो ये दोनों पावर इसके -2 है, ये 1 है, पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। ये पहले लिख देंगे कोसेक थीटा, और ये पावर ये भी एक 1 पावर है, ये -2 है, दोनों ऐड हो जाएंगी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेस टू पावर -1 बच जाएगा। ये -2 प्लस 1, ये पावर 1 है, -2 प्लस 1 विल बी -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इसको नेगेटिव को नीचे ले जाएं सो इट विल बिकम कोसेक थीटा, ये ऊपर रहेगा, अपॉन ये -1 पावर नीचे आ गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आंसर आ गया, कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। दिस इज द फाइनल आंसर।
So this is the final answer. dr upon d theta is equal to, पहले ये माइनस इधर आ गया और ये एज इट इज लिख दिया और इसकी पावर माइनस करके लिख दिया। फिर क्या किया, जो भी है इनसाइड है इसका डेरिवेटिव ले लिया। ये क्या हो गया, माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेज टू पावर -2 और इसका डेरिवेटिव लिया, कोसेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा और कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस कोसेक थीटा कॉमन ले लिया तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया और ये कोसेक थीटा बाहर आ गया। ये है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेज टू पावर -2। यहाँ क्या बचा, कोसेक थीटा बाहर आ गया तो अंदर बचा कॉट थीटा। ये भी माइनस कॉमन निकल गया था, प्लस हो गया। एक कोसेक बाहर आ गया तो अंदर बच गया कोसेक थीटा। तो ये भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, ये भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है। तो ये दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, -2 + 1 विल बी -1 और कोसेक थीटा पहले लिखते हैं। अब इसको पावर -1 को नीचे ले गए ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। मोहम्मद सलमान खान 64094। So this is the final answer. एक और क्वेश्चन हम करते हैं। f theta is equal to sin theta upon 1 plus cos theta whole raised to power 2. This question understood, all of you? Have you understood this question? Yes, sir. Okay. Now I am doing question number 33. F of theta is equal to sin theta upon 1 plus cos theta. Whole square. Now we will find df upon d theta. पहले r था dr upon d theta, ds था ds upon dt, y था dy upon dx etc. तो ये f of theta है तो हम इसको डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ f of theta, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा इज द वेरिएबल। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पावर ले लेंगे 2 और इसकी एक पावर कम करके एज इट इज लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल रेज़्ड टू पावर 2 - 1। ये एज इट इज लिख दिया। फिर क्या किया, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, ये जो इनसाइड है इसका। ये सिंप्लीफाई हुआ, ये 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा रेज़्ड टू पावर 1, 2 - 1 विल बी 1। इसमें u अपॉन v का फार्मूला लग जाएगा, इसमें u अपॉन v का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ u यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव
साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस न्यूमरेटर का यहां डेरिवेटिव लिया था, अब न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, होल अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और ये होल क्लोज कर, ये होल था, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2, इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इसके पावर मोर देन 1 होती या लेस देन, मतलब 1 के अलावा कोई पावर होती तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, 1 का मतलब कोई पावर नहीं। ये एक ब्रैकेट हो गया हमारे पास, दूसरा ब्रैकेट ये है, इसको ओपन करेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, और साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये तो यहां तक डेरिवेटिव हो गया, ये बाकी तो हम अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये डेरिवेटिव हुआ इसका, अब आगे डेरिवेटिव नहीं लिया जा रहा, ये फाइनल डेरिवेटिव हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने इस स्टेप में, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन थीटा, सर इसमें u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाया। जी यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगाया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, cos square theta plus sin square theta will be 1, cos square theta plus sin square theta is 1, so plus 1 upon 1 plus cos square cos theta whole square। तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है, ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा एक ही चीज होती है, तो कॉस थीटा प्लस 1 जो है 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, ये इससे भी कैंसिल हो सकता था एक से, लेकिन फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। This is the final answer of derivative of f of theta with respect to theta. Derivative of f of theta with respect to theta. खलील मोहम्मद मिर्जा। सर ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चले गया? 1 हो गया ना बेटा, 62743 62743 खलील मोहम्मद मिर्जा। ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये कॉस थीटा अपनी जगह रहा, थैंक यू ये सर। 1 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 37 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। Q is equal to sin T upon under root T plus 1. ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करते हैं। डी क्यू अपॉन डी टी डी क्यू अपॉन डी टी नबील अहमद खान 61522। और मोहम्मद काशान 64055। Okay, dq upon dt will be equal to, this is sine. So the derivative of sine will be cos. Cos of t upon under root t plus 1 into derivative of this function. Derivative with respect to t of what? T upon under root t plus 1, इसका डेरिवेटिव। साइन का कॉस हो गया, अब जो इसके अंदर था ब्रैकेट के उसका डेरिवेटिव। इसमें भी u अपॉन v का फार्मूला लग जाएगा। ये एज इट इज आया कॉस t अपॉन रूट t प्लस 1 इंटू, इसमें u अपॉन v का फार्मूला लग जाएगा भाई। u अपॉन v का फार्मूला क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर 1 इंटू द डिनोमिनेटर अंडर रूट t प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस वन t, ये न्यूमरेटर का यहाँ डेरिवेटिव लिया था, अब न्यूमरेटर एज इट इज आ गया, और इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट t प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर अंडर रूट t प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट t प्लस 1 का स्क्वायर। फर्दर एज इट इज आ गया, इसको सॉल्व किया, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट t प्लस 1 आ गया माइनस 3, इसका डेरिवेटिव ले ले अंडर रूट t प्लस 1 का। ये एक्चुअली है, इसका अलग से मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसका डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट t प्लस 1, ये हो गया t प्लस 1 रेज टू पावर 1 ओवर 2। अंडर रूट t प्लस 1 क्या हो गया? t प्लस 1 रेज टू पावर 1 ओवर 2। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पहले 1 ओवर 2 लिखेंगे और t प्लस 1 रेज टू पावर 1 ओवर 2
-1 कर देंगे, 1/2 -1। नजर नहीं आ रहा। यहाँ हम करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ √t+1 क्या होगा, t+1 रेज टू पावर 1/2। √t+1 क्या होगा, t+1 रेज टू पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पहले पावर 1/2 ले लेंगे और t+1 रेज टू पावर 1/2 -1 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज इनसाइड, डेरिवेटिव ऑफ t+1 से इसके जो इनसाइड पे तो पावर हमने यहाँ ली, एक पावर कम करके लिख दिया फंक्शन को, फिर फंक्शन जो था एक्चुअल उसकी डेरिवेटिव ले लेंगे। ये क्या होगा, 1/2 t+1 रेज टू पावर 1/2 -1 will be -1/2 into derivative of t will be 1 plus 0, और ये हो जाएगा 1 plus 0 will be 1, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इट विल बी एज इट इज, सो 1/2, और ये t+1 रेज टू पावर -1/2, चाहे तो एज इट इज लिख दें हम 1/2 t+1 रेज टू पावर 1 -1/2। ये हमारे पास डेरिवेटिव इसका आ गया, इसका तो t एज इट इज लिखा, और इसका डेरिवेटिव जो है हमने ये लिखा, ये हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू t+1 रेज टू पावर -1/2। ये हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, इसका डेरिवेटिव होल अपॉन √t+1 होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये t+1 बच गया। राफे रहमान, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये तो एज इट इज आएगा